Hello everyone, I'm Divakar Chaudhary, working as an assistant professor at Department of Management in GL Bajaj, Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today, I'll be taking lecture 6 of Unit 1 of Export-Import Documentation, where I will be covering deemed exports, merchant and manufacturing exports, like manufacturer exports and shipment procedures. Let's move forward with it. When we talk about the deemed exports, what do we understand? Deemed export are defined in the Export and Import Policy 1997-2002. Means those transactions in which the goods supplied do not leave the country and the supplier in India receives the payment for the goods. What do we understand by deemed exports? डीम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उस 1997 2002 पॉलिसी के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिसमें कहा जाता है कि वो ट्रांजैक्शन जिनमें जो गुड सप्लाई होना था कंट्री के बाहर, वो कंट्री से बाहर सप्लाई हुआ नहीं होता है और सप्लायर जो होता है हमारे इंडिया के अंदर ही, उसको पेमेंट ऑलरेडी मिल जाती है उस गुड्स के लिए. इट मीन्स द गुड्स सप्लाइड need not to go out of India to treat them as deemed exports. Now, deemed exports refers to those transactions in which goods supplied, which अभी जो मैंने बताया था, goods supplied do not leave the country and the payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange, known as forex also. The following categories of supply of goods by the main subcontractors shall be regarded as deemed exports under this policy, provided the goods are manufactured in India. Supply of goods against advance license for annual requirement DFRC under the duty exemption remission scheme. Supply of goods to export oriented units like EOUs or software technology parks like STPs or electronic hardware technology parks like EHTPS or biotechnology parks known as BTPs. Supply of capital goods to holders of licenses under the Export Promotion Capital Goods EPCG scheme. Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies, funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under international competitive bidding in accordance with international competitive bidding in accordance with the procedures of those agencies, funds where the legal agreement provide for the tender evaluation without including the customs duty. Supply of capital goods including in unassembled, disassembled conditions as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of commercial production and spares to the extent of 10% of the FOR value to the fertilizer plants. Supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance by a notification permits the import of such goods at zero customs duty. Supply of goods to the power projects, supply of marine freight containers by 100% EOU, domestic freight containers manufacturers, provided the said containers are exported out of India within the period of 6 months or such further period as permitted by the customs, and supply to projects funded by UN agencies, supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to international competitive bidding. Now, what are the benefits for deemed export?
When we talk about the benefits, deemed export shall be eligible for any all of the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports, like advance license for intermediate supply, deemed export, DFRC, DFRC for intermediate supplies, deemed export drawback, exemption from terminal excise duty where supplies are made against international competitive bidding. In other cases, refund of terminal excise duty will be given. Merchant exporter means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods. What does a merchant exporter means? वो इंसान जो कि अलग ट्रेडिंग एक्टिविटी या एक्सपोर्टिंग या फिर एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाता है. मर्चेंट एक्सपोर्टर procures the material from a manufacturer and export in his firm's name. मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या करेगा? मर्चेंट एक्सपोर्टर मटेरियल एक मैन्युफैक्चरर के थ्रू लेगा, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कैसे करेगा? उसको एक्सपोर्ट अपनी फर्म के नाम से करेगा. Here, merchant exporter procures the order from international market. वो इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपोर्टर क्या करता है? ऑर्डर को प्रोक्योर करता है. Merchant exporter does not have own manufacturing unit or processing factory. मर्चेंट एक्सपोर्टर की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है, ना ही उसकी अपनी कोई प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है. Merchant exporter can export the excisable goods either directly from the premises of the manufacturer with or without sealing of the export consignments or through his premises under claim for rebate or under bond. Manufacturer exporter क्या होता है? Manufacturer exporter means a person who manufactures goods and exports or intends to export such goods. The manufacturer exporter procures and processes raw materials at his factory and export finished products. Here, the manufacturer exporter procures the export order and exports in their own name. मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर वो होते हैं वो पर्सन जो मैन्युफैक्चर करता है अपने खुद के गुड्स और उनको एक्सपोर्ट करता है या फिर एक्सपोर्ट करने का प्लान करता है. वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके अपनी ही फैक्ट्री पर एक्सपोर्ट करता है ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, उनको कहते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर. जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होता है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोक्योर करते हैं और खुद से ही अपनी ही नाम से एक्सपोर्ट करते हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय शिपमेंट प्रोसीजर्स? शिपमेंट प्रोसीजर क्या होता है? एक्सपोर्ट कार्गो कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ओवरसीज बायर बाय सी, एयर और लैंड. एक्सपोर्ट कार्गो जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है किसी भी ओवरसीज बायर को बाय द मीडियम ऑफ सी, शिप्स के थ्रू, बाय एयर फ्लाइट्स के थ्रू या एरोप्लेन, एयर कार्गोज. कई हैं हमारे पास ऑप्शंस. बाय एयर जा सकते हैं और बाय लैंड बाय डिफरेंट कार्गोज, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. हाउएवर, shipment by sea is the most popular and generally resorted to as it is comparatively cheaper. जो सी का रास्ता होता है उसके थ्रू शिपमेंट ज़्यादा पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आराम से हो जाता है और कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर है बाकी मीडियम से. लाइक बाय एयर और बाय लैंड सी से कंपैरेटिवली बहुत चीप पड़ता है. सी का चीप पड़ता है कंपैरेटिवली टू एयर और लैंड. Beside, the ship's capacity is far greater than other modes of transportation. जो शिप की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि एयर और लैंड है उनसे काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके पास स्टोरिंग की. तो इसीलिए उस मीडियम सी मीडियम को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. नेवरदलेस, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा. लेकिन जब हम बात करते हैं डायमंड, गोल्ड इन जैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की, तो उस टाइम पे हम बाय एयर यूटिलाइज करते हैं क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है और जल्दी चीज़ें पहुंच जाती हैं एज वो काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं.
द शिपमेंट स्टेज इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। शिपमेंट स्टेज में क्या क्या फॉलोइंग स्टेजेस आती हैं? रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, सबसे पहला पॉइंट। वंस द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज्ड, द एक्सपोर्टर रिजर्व्स द रिक्वायर्ड स्पेस इन द वेसल फॉर शिपमेंट। जब भी कोई भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो एक्सपोर्टर क्या करता है, जितना उसका रिक्वायर्ड स्पेस है उसको शिपमेंट में बुक कराता है। ऑन एक्सेप्टिंग द एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्ट, द शिपिंग कंपनी इशूज अ शिपिंग ऑर्डर। जब एक्सपोर्टर की रिक्वेस्ट पर उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो शिपिंग कंपनी होती है वो शिपिंग ऑर्डर को इशू कर लेती है। द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द शिपिंग ऑर्डर इज गिवन टू द एक्सपोर्टर एंड द डुप्लीकेट इज सेंट टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप। जो कि ओरिजिनल कॉपी होती है शिपिंग ऑर्डर की, वो एक्सपोर्टर को दे दी जाती है ओरिजिनल कॉपी, और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो कमांडिंग ऑफिसर को दे दी जाती है जो कि उस शिप का होता है। द शिपिंग ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन बाय द शिपिंग कंपनी टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप दैट द गुड्स एज पर द डिटेल्स गिवन शुड बी रिसीव्ड ऑन बोर्ड। उस शिपिंग ऑर्डर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं शिपिंग कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर के लिए, जो कि उस शिप का कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसके लिए कि जो भी गुड्स उसमें डिटेल्स दी हुई हैं वो एज इट इज रिसीव होने चाहिए ऑन बोर्डिंग पर। सेकेंड पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। द एक्सपोर्टर मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट आइदर बाय रोड और रेलवेज। जो कि एक्सपोर्टर होता है इसमें वो अरेंजमेंट्स करता है गुड्स का या तो पोर्ट के थ्रू या रोड के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू। ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन, द रेलवे अथॉरिटीज इशू अ रेलवे रिसीप्ट विच मे बी आइदर फ्राइट पेड और फ्राइट टू पे। जब गुड्स लोड हो जाते हैं आपके रेलवे वैगन में तो उसके बाद में रेलवे अथॉरिटीज इशू करती हैं रेलवे रिसीप्ट को, जो कि या तो पहले से पेड होती हैं या फिर आगे जाके डिलीवरी पे पेमेंट के लिए होती हैं। इट सर्व्स एज अ टाइटल टू द गुड्स। ये गुड्स का टाइटल की तरह काम करती हैं। द एक्सपोर्टर एंडोर्सेस द रेलवे रिसीप्ट इन फेवर ऑफ हिज एजेंट टू इनेबल हिम टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर एंडोर्स करता है रेलवे रिसीप्ट को अपने एजेंट के फेवर में। क्यों? ताकि वो डिलीवरी ले सके गुड्स की पोर्ट ऑफ शिपमेंट पर। When we talk about the third point, it shows us preparation and processing of shipping documents. In this, as the goods reach the port of shipment, जब goods पहुंच जाते हैं port of shipment पर, the exporter should issue detailed instructions to the C&F agent for the shipment of cargo along with a complete set of the documents, which are these. जब वो गुड्स पोर्ट ऑफ शिपमेंट में पहुंच जाते हैं तो एक्सपोर्टर को इशू करना होता है एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन C&F एजेंट को शिपमेंट ऑफ कार्गो के लिए, जिसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट अलोंग विद द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेटर ऑफ क्रेडिट होना ज़रूरी है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ। कमर्शियल इनवॉइस होनी चाहिए जिसकी 2 कॉपियाँ होना ज़रूरी है। पैकिंग लिस्ट और पैकिंग नोट, पैकिंग नोट या पैकिंग लिस्ट दोनों में से कोई भी एक चीज़ होना इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। GR फॉर्म ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों होने चाहिए। ARE 1 फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन वेयर नेसेसरी ओरिजिनल कॉपी। जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे ओरिजिनल कॉपी उसकी शो करनी पड़ेगी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है मरीन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस क्या होती है? द कार्गो मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम्स बिफोर इट इज लोडेड ऑन द शिप। कार्गो हमेशा पहले कस्टम से क्लियर होना चाहिए शिप पर लोड किए जाने से पहले। फॉर दिस द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द 5 कॉपीज ऑफ शिपिंग बिल आर टू बी सबमिटेड टू द कस्टम्स अप्रेजर एट द कस्टम्स हाउस। इसके लिए क्या करना होगा? जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे बात करी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को शिपिंग बिल के साथ 5 कॉपी शिपिंग बिल की उनके साथ सबमिट किया जाएगा कस्टम अप्रेजर को, जो कि कस्टम्स हाउस में होगा। द कस्टम अप्रेजर
ensures that all the formalities relating to exchange control, quality control, pre-shipment inspection and licensing have been compiled with by the exporter. इसमें कस्टम अप्रेजर ये इंश्योर करेगा कि जो भी फॉर्मेलिटी है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि एक्सचेंज कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एंड लाइसेंसिंग, ये सारी कंपाइल की जा चुकी हैं एक्सपोर्टर के द्वारा. आफ्टर वेरिफिकेशन all the documents except the original GR, original copy of shipping bill and one copy of commercial invoice are returned to the C&F agent 24. Here जब वे सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हो जाती है तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट द ओरिजिनल GR जो होता है उसकी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी ऑफ शिपिंग बिल एंड एक कॉपी कमर्शियल इनवॉइस की, ये रिटर्न कर दी जाती है CF एंड एजेंट को. नाउ कस्टम्स एग्जामिनेशन एंड इशू ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. द कस्टम्स एग्जामिनर एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट physically examines the goods and sees the package in his presence. जो कस्टम एग्जामिनर होता है वो पोर्ट पर शिपमेंट को फिजिकली खुद जाकर के एग्जामिन करता है और सील कर देता है पैकेज को अपने प्रेजेंस में ही. द सेम कैन बी अरेंज्ड फॉर द एट द फैक्ट्री or warehouse of the exporter by making an application to the assistant collector of customs. ये चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं फैक्ट्री या वेयरहाउस पर, एक्सपोर्टर के वेयरहाउस पर एक एप्लीकेशन दे करके असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को. द कस्टम्स एग्जामिनर इफ सेटिस्फाइड issues a formal permission for the loading of cargo on the ship in the form of a let export order. अगर कस्टम्स एग्जामिनर कंप्लीटली सेटिस्फाइड है तो वो एक फॉर्मल परमिशन देता है कार्गो को लोड करने के लिए शिप पर. किस फॉर्म में? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के फॉर्म में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th पॉइंट हियर, ऑब्टेनिंग लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम द कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर. लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर must be supplemented by a let ship order issued by the customs preventive officer. ये हमेशा सप्लीमेंट किया जाना चाहिए, इशू किया जाना चाहिए प्रिवेंटिव ऑफिसर के द्वारा. द C&F एजेंट सबमिट्स द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल ड्यूली एंडोर्स्ड बाय द कस्टम्स एग्जामिनर टू द कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर हु एंडोर्स्ड इट विद द लेट शिप ऑर्डर. जो C&F एजेंट होता है वो सबमिट करता है डुप्लीकेट कॉपी शिपिंग बिल की जो कि एंडोर्स की जा चुकी है कस्टम्स एग्जामिनर के द्वारा, जो कि टू द कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर को, जो कि एंडोर्स करता है लेट शिप ऑर्डर के साथ उसको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th पॉइंट, इट्स ऑब्टेनिंग मेट्स रिसीप्ट एंड बिल ऑफ लैंडिंग. द गुड्स आर देन लोडेड ऑन बोर्ड एंड द शिप फॉर विच द मेट और द कैप्टन of the ship issues mates receipt to the port superintendent. जब गुड्स लोड किए जा चुके होते हैं ऑन बोर्ड शिप पर तो क्या होता है, कैप्टन जो होता है शिप का वो इशू करता है मेट्स रिसीप्ट किसको? पोर्ट सुपरिटेंडेंट को. तो पोर्ट सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ पोर्ट ड्यूज हैंड्स ओवर द मेट्स रिसीप्ट टू द C&F एजेंट. तब पोर्ट सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? जो रिसीप्ट होती है पोर्ट ड्यूज की वो सारी हैंड ओवर कर देगा मेट्स रिसीप्ट को C&F एजेंट को. द C&F एजेंट सरेंडर्स द मेट्स रिसीप्ट टू द शिपिंग कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग द बिल ऑफ लैंडिंग. क्या करेंगे C&F एजेंट? क्या करेगा फिर? वो सरेंडर कर देगा मेट्स रिसीप्ट को किसको? शिपिंग कंपनी को. किस चीज़ के लिए? बिल ऑफ लेडिंग लेने के लिए. द शिपिंग कंपनी इशूज 2 to 3 नेगोशिएबल एंड 2 to 3 non-negotiable copies of bill of lading. शिपिंग कंपनी फिर क्या करेगी? शिपिंग कंपनी इशू करेगी 2 से 3 नेगोशिएबल एंड 2 से 3 नॉन नेगोशिएबल कॉपी किसकी? बिल ऑफ लेडिंग की. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द 8th पॉइंट, कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज. द C&F एजेंट देन अप्रोचेज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द कंसर्न पोर्ट ट्रस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर फॉर मूविंग द कार्गो इनसाइड द डॉक. इसके बाद C&F एजेंट क्या करेगा? वो अप्रोच करेगा सुपरिंटेंडेंट ऑफ द कंसर्न पोर्ट ट्रस्ट, उस पोर्ट ट्रस्ट के सुपरिंटेंडेंट को. किस चीज़ के लिए? कार्टिंग ऑर्डर लेने के लिए, ताकि वो कार्गो को
डॉक में लगा सके। After obtaining the carting order, the cargo is physically moved into the port area and stored in the appropriate shed. जब ऑब्टेन हो जाएगा कार्टिंग ऑर्डर, तो उसके बाद में क्या होगा, कार्गो को फिजिकली मूव किया जाएगा पोर्ट एरिया में एंड स्टोर किया जाएगा अप्रोप्रिएट शेड के अंदर। उसके बाद क्या होगा, कस्टम्स एग्जामिनेशन एंड इश्यू ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। द कस्टम्स एग्जामिनर एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट physically examines the goods and sees the package in his presence. उसके बाद क्या होगा, जो कस्टम एग्जामिनर होगा वो पोर्ट ऑफ शिपमेंट को फिजिकली एग्जामिन करेगा गुड्स को और सील कर देगा पैकेज को अपने सामने। द सेम कैन बी अरेंज्ड फॉर एट द फैक्ट्री और वेयर हाउस ऑफ द एक्सपोर्टर बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। ये अरेंज किया जा सकता है फैक्ट्री पर भी और एक्सपोर्टर के वेयर हाउस पर भी। किस तरीके से, एक एप्लीकेशन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को लिख करके। द कस्टम्स एग्जामिनर इफ सेटिस्फाइड इशूज अ फॉर्मल परमिशन फॉर द लोडिंग ऑफ कार्गो ऑन द शिप इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। इसके बाद क्या होगा, कस्टम्स एग्जामिनर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो एक फॉर्मल परमिशन दे देगा कार्गो लोड करने के लिए शिप पर एक्सपोर्ट ऑर्डर के फॉर्म में। लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम द प्रिवेंटिव ऑफिसर। Let export order must be supplemented by a let ship order issued by the customs preventive officer. जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा वो सप्लीमेंट किया जाएगा लेट शिप ऑर्डर के द्वारा, इशू किया जाएगा कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर के द्वारा। तो जो C&F एजेंट होगा सबमिट्स द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल ड्यूली एंडोर्स्ड बाय द कस्टम्स एग्जामिनर टू द कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर हु एंडोर्स इट विद द लेट शिप ऑर्डर। नाउ ऑब्टेन the mate's receipt and bill of lading. The goods and then loaded on the board of ship for which the mate or the captain, the ship issue mate's receipt for the port superintendent. The port superintendent on receipt of port dues hands over the mate receipt to the C&F agent. The C&F agent sends the mate receipt to the shipping company for obtaining the bill of lading. The shipping company issued 2 to 3 negotiable and 2 to 3 non-negotiable copy of bill of lading. Now, what we have covered today, let's go on further with it once again for the better understanding. When we talked about the deemed export, what we understand from that? Deemed export are defined in the export import policy 1997-2002. Means वो ट्रांजेक्शन जिनमें गुड सप्लाई किए जाने के पहले, मतलब कंट्री से बाहर जाने से पहले ही उन गुड्स की पेमेंट सप्लायर को रिसीव हो जाती है इंडिया के अंदर, उसे कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो कि जिसमें गुड्स को सप्लाई को इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए पहले, उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। लाइक इट मीन्स द गुड्स सप्लाइड नीड नॉट टू गो आउट ऑफ इंडिया टू ट्रीट देम एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट्स रेफर किया जाता है वो ट्रांजेक्शन जिनमें गुड्स सप्लाई होने वाले वो कंट्री को लीव नहीं करते हैं, उससे पहले ही पेमेंट ऑफ सच सप्लाईज इज रिसीव्ड ईदर इन इंडियन रुपीज या फिर फ्री फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स के थ्रू। द फॉलोइंग कैटेगरीज होती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द मेन सब कॉन्ट्रैक्टर्स शैल बी रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स अंडर दिस पॉलिसी प्रोवाइडेड द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट एडवांस लाइसेंस फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट DFRC under the duty exemption remission scheme. Supply of goods to export oriented units EOUs or software technology park STPs or electronic hardware technology parks EHTPs or biotechnology parks BTPs. Here we understood about benefits of the deemed export also. Here we covered कि manufacturer exporter कौन होते हैं, merchant exporter कौन होते हैं। इसके बाद में हमने कवर किया है शिपमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, कि कैसे ओवरसीज बायर तक एक्सपोर्ट कार्गो पहुंचाया जा सकता है बाय सी, एयर और लैंड के थ्रू। इसमें हम लोगों ने स्टेजेस भी पढ़ी हैं आगे कि क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कवर करने होंगे जिसके थ्रू हम वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं इन बुक्स को, लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बाय रामा गोपाल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बाय प्रोफेसर रवि फाड़के and Professor Pooja Aprajita, and import documentation by Jain Book Depot. And that's all from me for today.
Thank you.